Well, the Somnath temple, located on the western coast of Gujarat in Prabhas Patan near Varaval, stands as one of the most revered Jyotirlinga shrines dedicated to Lord Shiva. Known as the Eternal Shrine, it symbolizes resilience, faith, and the triumph of reconstruction over destruction. The temple has been rebuilt multiple times throughout history, yet the current structure, completed in 1951 following a reconstruction initiative led by Sardar Vallabhbhai Patel and inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad, closely echoes the grandeur of its ancient predecessors. But how was this temple built? What kind of architecture was used to build this monument of faith and resilience that was and still one of the most sacred temples in the Sanatan Dharma? Hello and welcome to NewsX Deep Dive. My name is Vineet Malhotra, and today let's walk you through the architecture of the Somnath temple and explore how the modern version faithfully revives the spirit and style of the original ancient structure. Well, the history of Somnath is marked by repeated cycles of destruction and rebirth. Ancient texts like the Mahabharata and Skanda Purana mention the site as a sacred tirtha. The earliest substantial temple likely dates to the 9th and 10th century CE, flourishing under the Solanki dynasty. The most famous medieval version was built by King Bhima the first and later enhanced by Kumarapala in the 12th century. Archaeological remains from the pre-11th century temple reveal a Triyanga Sandhara Prasada layout, a sanctum sanctorum, or a Garbha Griha connected to an entrance hall, or a Mukha Mandapa and an assembly area. The structure featured a tall base with intricate moldings, foliage patterns, niches for deities, and an open design allowing light into the mandapa. It was east facing with elaborate carvings of figures like Lakulisa, a form of Shiva, and beautiful ribbed awnings. The current temple, which was rebuilt in 1951 in the classic Maru Gurjarav Chalukya style, is a two-level structure overall with pillared mandapas at different elevations, allowing natural light to flood the interiors through large windows and circumambulatory passages. The temple is surrounded by the sea, due to which saving the structures from erosion becomes of utmost importance. It is surrounded by a promenade to protect the temple premises and a tetrapod to protect it from erosion. It is also surrounded by a promenade walkway pavement that extends to about 1.48 kilometers. It also has a Yatri Nivas nearby to cater for the pilgrims who come to offer their prayers. The core temple precinct is compact yet expansive for a pilgrimage site, enclosed by an approximately 8-meter high compound wall that surrounds the main structure and protects it from sea waves during high tides. The immediate temple area, including mandapas, shrines, and open spaces, spans several acres. Estimates suggest that the core built up area is around 5 to 10 acres, with the broader pilgrimage zone including ghats, museums, and ancillary temples extending further. Let's talk about what sits atop the temple. The towering Shikhar rises to approximately 155 feet, which is 47 meters from the base to the golden Kalash at the top, crowned by a massive 10-ton golden Kalash that gleams in the sunlight. This grand temple was exquisitely carved, rich in sculptures, and followed the Maru Gurjara style, also known as Chalukya or Solanki style, a regional variant of North India's Nagara architecture. The Maru Gurjara architecture flourished in Gujarat and Rajasthan from the 11th to the 13th century under the Solanki dynasty. It is renowned for its exquisite stone craftsmanship, intricate detailing, and harmonious design. Some of the features of the Maru Gurjara style of architecture include highly ornate interiors and exteriors with multiple projections and recesses on walls, creating dynamic light and shadow play. It also includes sharply carved niches housing statues of deities, mythological figures, and motifs. Other than that, temples built in this style of architecture have towering shikharas, which are spires that curve gracefully upward, and interlocking stone blocks assembled without mortar, relying on precise Sompura mason techniques. Pillared halls, open designs for natural light, and elaborate carvings of foliage
Geometric patterns and narrative scenes from the epics are also another highlight in the Maru Gurjar style of architecture. In fact, the temple's key mandapas are supported by 72 pillars in total. The Garbhagriha or Sanctum Sanctorum of the Sri Somnath temple is the sacred heart of this eternal Jyotirlinga shrine, where the divine presence of Lord Shiva manifests as the Somnath Jyotirlinga, a powerful black stone lingam symbolizing infinite light and cosmic energy. Housed in the innermost chamber of the current 1951 rebuilt structure, the serene sanctum radiates intense spiritual aura. The Jyotirlinga stands firmly on its pedestal, bathed in ritual offerings, with daily Abhishekam, Vedic chants, and Aartis creating a profound devotional atmosphere. The sanctum features intricately carved walls depicting mythological scenes, deities, and motifs in the classic Maru Gurjara style. In essence, the current Somnath temple is more than a reconstruction. It is a deliberate homage to its ancient glory. As President Rajendra Prasad said during the 1951 consecration, and I quote, "The Somnath temple signifies that the power of reconstruction is always greater than the power of destruction." This magnificent structure facing the endless Arabian Sea continues to inspire millions, reminding us of India's enduring spirit. Mr. Chandrakant Sompura, Chief Architect of the Somnath Temple, is joining us on the broadcast to talk more about this. सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर की रीबिल्डिंग को इंडिया का एक कल्चरल सिंबल माना है और एक रेजिलियंस माना है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया पर? इसमें पहली बात तो यह है कि ये जो टेम्पल बना है, जो 51 में उनका इनॉग्रेशन हुआ, तो वो सब डिजाइन मेरे दादाजी ने की थी और उस टाइम से हम लोग वहाँ उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक भी जो विधर्मियों ने जो जिसको तोड़ा है उसको रिबिल्ड करना है, तो एक करने की जो इच्छा थी वो सबकी पूर्ण हुई और ये 51 में जो इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके बाद में मंदिर का काम तो करीब 10 साल तक चला, मगर एक गर्भगृह करके मंदिर का शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। तो एक हर हिंदू के लिए गर्व की बात है कि हमने ये जो कई बार, मतलब एक बार नहीं, गजनी ने तो तोड़ा था, कई बार ये मंदिर टूटा और कई बार बना और आज भी वो टूट के भी अखंड खड़ा है और जो मंदिर बना है वो एक अद्भुत है और महाप्रसाद है। इसके 1001 अंडक का महामेरु प्रसाद बना, वो एक अद्वितीय बात है। सर, एक बात बताइए, चालुका आर्किटेक्चर और ये जो ट्रेडिशनल कारीगरी है, इसको समझने में और इसको दोबारा से प्रेरणा सहित इस मंदिर में बनाने के लिए क्या क्या लगा? ये पूरा मंदिर जो उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक नागर शैली के मंदिर करीब करीब बनते हैं। तो ये सब चालुक्य नागर शैली जो बनते हैं उसमें बहुत विविधता है। हर एक भगवान की, जैसे विष्णु है तो विष्णु का अलग मंदिर है, माता जी है तो माता जी का अलग मंदिर है, शिव जी का तो शिव जी का भी अलग मंदिर है और जैनियों का तो जैनियों का भी अलग मंदिर है। तो हर एक चीज में इसमें क्या बोलते हैं, इसको एक विशालता दी हुई है। इसमें ये जो सोमनाथ जी का मंदिर है वो महामेरु प्रसाद, जिसकी सभ्रम प्रसाद है, जिसके अंदर प्रदक्षिणा है और शिखर इसके बाहर है। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत कम मंदिर है, ऐसा मंदिर है और ये कम से कम मेरे ख्याल से ऐसा शिव मंदिर कोई दूसरा होगा नहीं। ये सिर्फ सबसे बड़ी बात है। सर, जो आधुनिक इंजीनियरिंग की और आर्किटेक्चर की जो अभी परिभाषा है, उसको किस तरीके से इस मंदिर के साथ जोड़ा गया?
ये जब बना, तब जो उसको फाउंडेशन किया गया, वैसे कहते हैं कि रेत में फाउंडेशन करना, अगर रेत इधर से उधर नहीं होती, मतलब बाहर नहीं निकल जाती है, तो रेत के अंदर फाउंडेशन बहुत अच्छी बात है। वहां समुद्र का किनारा है और वहां खाली रेत रेत ही है, तो वहां रेत को बाहर नहीं ले जाने के लिए, बाहर नहीं निकल जाए, इसके लिए जो एक वॉल बनाई गई है, वो वॉल को इतनी मजबूत की है कि वो रेत को इधर उधर नहीं होने देगी। और रेत के अंदर पाया है, मतलब कहीं भी आप कितने भी अंदर जाएंगे तो रेत ही मिलेगी। और उसके ऊपर जो इसका पत्थर का काम करके जो काम किया गया है, वो खूब इतना मजबूत है कि उसको कुछ होना नहीं। आज अर्थक्वेक आया, तभी हमको वहां सब लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये अर्थक्वेक में मंदिर इधर उधर थोड़ा सा हिल रहा था, मगर अपने आप ही अपनी जगह पे बैठ गया। एक नई बात है कि भाई कुछ हुआ नहीं मंदिर को। सर, सोमनाथ मंदिर भारत की अगर हिस्ट्री को देखा जाए, इतिहास को देखा जाए और भारत के हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश की जाए, तो सोमनाथ मंदिर को देखकर क्या कहा जा सकता है? इस ज्योतिर्लिंग में तो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ही है। इसके बाद में बहुत से मंदिर तो बने, कई मंदिर बने शिव जी के बने। जैसे हमने अभी राम मंदिर बनाया, तो राम मंदिर की एक वस्तु ही अलग है, क्योंकि वो विष्णु के हिसाब से बना है। शिव जी का मंदिर जो है, राम मंदिर मतलब ये सोमनाथ का मंदिर उन्हीं के हिसाब से बना है। हम कोई जैन मंदिर बनाते उसी के हिसाब से बनाते। तो एक विशेषता, हर एक मंदिर की खुद की विशेषता होती है। वो उस अपने आप ही उसमें करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र है पूरा, शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र, इसमें हर एक चीज की गणना है। कोई कहता है कि भाई तुमने 13 फुट 1 इंच का क्यों रखा, ये फरा ये क्यों रखा, जो आय नक्षत्र तारा गण सब मिलके इसको मतलब मेजरमेंट लिया जाता है, तो उसी हिसाब से वो होता है। एक कोई कहता है कि 12 फुट का है, 12 फुट का क्यों नहीं किया आपने, 12 3 क्यों किया, 3 का क्या गुना मतलब है। तो उसका नक्षत्र आय वो जो है, दिशा है, पूर्व दिशा है, तो पूर्वाय नमः जैसे कहते हैं अपने, तो हमारा पूर्व में मंदिर बनाना है तो पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र मिलाते हैं, उत्तर में करना है तो रेवती नक्षत्र वगैरह मिलाते हैं। तो हर एक नक्ष मतलब दिशा का नक्षत्र सब अलग होता है, तो इसी के हिसाब से उसका मेजरमेंट होता है। और वो सब एक गणना है। वो मेरे दादाजी ने करीब इसके पीछे 12 13 किताब लिखी है। उसके सब जानकारी उसमें दी है, तो उसी से लोगों को जानकारी मिले कि ये क्या है। पहले तो शास्त्र में कोई जानता नहीं था, और शास्त्र भी ऐसे लिखे हुए थे कि मैं मेरे लड़के के सिवा किसी को जानने नहीं दूँ, मेरा लड़का ही मुझे फॉलो करेगा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसमें लिखा था जो जानकार है, जैसे कि 27 नक्षत्र है, तो उसमें शास्त्र में लिखा था कि भाई 27 गुणे या 27 भागे, मतलब उसको मल्टीप्लाई 27 से करना है या क्या करना है। वेद 4 है तो 4 भागे या 4 वेद, ऐसे ऐसा लिखा हुआ था। सबको मालूम नहीं पड़ता था कि 4 से इसको गुणना है या 8 से गुणना है। तो वो पूरा गुड़ रहस्य जैसा था। तो मेरे दादाजी ने पूरा का पूरा पुस्तक रूप में दे दिया। सर, ये जो एक प्रोजेक्ट था, ये एक बहुत ही अहम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कितनी बड़ी जिम्मेदारी लगी आपको जब जब इसको आपने संभाला? नहीं, मैं तो हम लोग तो तब तो छोटे थे, मगर दादाजी कह रहे थे कि जो सोमनाथ मंदिर पहले था, जिसका फाउंडेशन मतलब वो जो उसका ढांचा जहाँ पुराना खड़ा था, उनको मेजरमेंट किया उन्होंने, और उसी हिसाब से ये मंदिर बनाया गया है। उसी के आधार से कि भाई इसको जो था पहले, उससे मतलब नक्शे में या हाइट में जो भी आप करना करो, मगर उसका जो बेस है, इसका फाउंडेशन ऐसा था तो इसी हिसाब से करना है, वो सब कुछ नाप करके किया गया है। सर, सोमनाथ स्वामीभान पर्व के बारे में, इस इनिशिएटिव्स, मुहिम के बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन लोगों के त्याग को एक तरह से सराहा
जिनकी जान सोमनाथ मंदिर को प्रोटेक्ट करने में, उसको बचाने में लगी। ये तो होना ही चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, वो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर है और ये याद करते हैं। क्योंकि वे इसमें सोमनाथ में जिसने भी अपना बलिदान दिया है उसको याद किया और करना चाहिए, और उसके हिसाब से उसको पूरा साल उसको याद करके इनके लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता रहे, तो एक अच्छी बात है। जैसे राम मंदिर में भी जिसने अपना बलिदान दिया था उनको उन्होंने याद किया था, वैसे ये यहाँ भी जिसने बलिदान दिया उनको याद कर रहे हैं। वो बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना ही चाहिए कि ये हुआ है। किसी ने भी, एक आदमी ने, 100 आदमी ने, 1000 आदमी ने, 1000 आदमी ने इसके पीछे अपना जान गंवाया है, तो ये इसको याद करना बहुत अच्छी बात है। सर, आखिरी सवाल, जब लोग दूर दूर से देखने आते हैं सोमनाथ मंदिर को, तो उसकी ऐसी क्या एक अद्भुत चीज़ है जिस पर उनको नज़र रखनी चाहिए? क्या मिलेगा उनको सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद? देखिए, पहले मंदिर इटसेल्फ एक फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसका एक महत्व है। तो इसके बाहर में आप देखेंगे तो जैसे इसका मंडप है, एक गुड मंडप है, एक रंग मंडप है। इसके पीछे जो गर्भगृह की वॉल है, गर्भगृह की वॉल में जो मूर्तियां बनी हुई है वो शिव के हिसाब से बनी हुई है। जैसे हम लोग कहते हैं पूर्व में इंद्राय नमः, पश्चिम में वरुणाय नमः, दक्षिण यमाय नमः। तो जैसे जैसे दिशा है, जैसे चारों दिशा, मतलब उसकी मूर्तियां सब बनी हुई है। शिव जी के अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां बनी हुई है। तो एक जिसको देखना है मूर्ति शास्त्र के हिसाब से, वास्तु शास्त्र के हिसाब से, उसको खूब जानने को मिलता है उसमें। सर, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।